ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ। ਲੈਟ ਆਰ ਬੀ ਆ ਰਿੰਗ ਵਿਦ ਯੂਨਿਟੀ। ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਲੈਟ ਏ comma b belongs to R, A non-zero है। then A is said to divide B। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ A divide B if B equals to AC for some C belongs to R। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ A divides B। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਿੰਪਲ ਨੇ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਅਲਜੈਬਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 9th 10th ਕਲਾਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ 2 divide 4, ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡਿਵਾਈਡ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਇੰਟੀਜਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਆਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਮ ਅਲਜੈਬਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ B ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ AC ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ A ਡਿਵਾਈਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ B ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ A ਇਜ਼ ਫੈਕਟਰ ਆਫ B। ਕੁਛ ਲਿੰਕ ਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੰਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 6 2 into 3 ਕਰਦਾ, 2 ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 3 ਵੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 2 ਇਜ਼ ਫੈਕਟਰ ਆਫ 6, 3 ਇਜ਼ ਫੈਕਟਰ ਆਫ 6, ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਾਈਦਰ A nor C, ਨਾ ਤਾਂ A ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇ ਨਾ C ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲੇ ਨਾ C ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਜਿਹੜਾ A ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਕਟਰ ਆਫ B ਹੈ। ਨਾ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲੇ ਨਾ C ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ A ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਕਟਰ ਆਫ B। ਸੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਟ ਆਫ ਇੰਟੀਜਰਸ ਲਏ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਊਗਾ 0 1 2 3 4 5 6 7। ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੋਡ ਲਓ 8 ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੋਡ ਲਓ 6 ਆ ਜੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ 8 ਸੌਰੀ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ 2 ਹੈਗਾ ਇਹ 4 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 2 3 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ 2 ਜੋ ਹੈ ਉਹ 3 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਅਲਜੈਬਰੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2 ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ 3 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿ A ਡਿਵਾਈਡ B ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜੇ B ਨੂੰ A ਟਾਈਮਸ R ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ R ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜੇ B ਬਣ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ? 2 ਡਿਵਾਈਡ 3 ਕਰਨਾ। 2 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੋਡ ਲਓ 8 ਆ, 2 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 3 ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। 2 ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 3 ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੀ। 0 ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਆਏਗਾ, 1 ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਆਏਗਾ, 2 ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਨਸਰ 8 ਜਾਂ 8 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 4 ਬਣੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਆ 2 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, 6 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, 4 0 ਆ ਜਾਏਗਾ, 5 ਲਿਆ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, 6 ਲਿਆ 12 ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ। 6 ਲਿਆ 12 ਨੂੰ 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ? 4।
7 लिया 40 14 में 8 से डिवाइड किया 6 आ जाएगा। मतलब कि कोई भी रिंग का एलीमेंट आप नहीं लै सकते है कि आंसर 3 बने। जे नहीं ये एलीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आप कहांगे 2 डज नॉट डिवाइड 3। जिमें कि आप लीए थोड़ा देखना ध्यान 0 1 2 3 4 ये रिंग ले ली अपने। उमें एडिशन मॉडल ऑफ 5 है जी, मल्टीप्लिकेशन मॉडल ऑफ 5। हुण देखो नवी गल आऊगी कि 2 जो है वो 1 नूं डिवाइड कर रहा इस केस। वैसे आम अलजैबरे में यह हुंदा नहीं है, पर चैक करो कि 2 नूं किसी नाल मल्टीप्लाई करके 1 आ सकता जी। 2 3 6 हुंदा, 6 नूं मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया 5 से 1 रिमाइंडर आएगा। तो जे 2 नूं आपां 3 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 1 बन जाएगा। जे ए नूं किसी नाल रिंग के किसी एलीमेंट नाल मल्टीप्लाई करके बी बन जाए तो आपां कहांगे ए डिवाइड्स बी। ए जो है वो बी नूं डिवाइड कर रहा है तो ये कहांगे 2 डिवाइड 1। ठीक है जी। चलो हुण आ भी देखना ने आपां कि 2 डिवाइड 3 करदा इस केस कि 2 नूं आपां किस नाल मल्टीप्लाई करके 3 बना सकते हैं। ये चेक कर लो, ये बना सकते हैं 4 नाल मल्टीप्लाई कर लो 2 4 का 8 बन जाएगा। 8 नूं 5 से डिवाइड किया 3 रिमाइंडर तो 2 डिवाइड 3 है। मतलब ये डिवीजन वो आम नहीं है जी आप अलजैबरे पढ़ते हैं। लिंक वो वांगू बनाया है थोड़ा जिहा, पर डिविजिबिलिटी ध्यान रखनी हैगी कि इदा नहीं कि 2 डिवाइड 3 तो पॉसिबल नहीं है। ये पहला भी गल की सीगी कि 2 नॉन जीरो नंबर आप लवांगे, 2 नॉन जीरो नंबर ले ले, उन्हां दी प्रोडक्ट जो है वो नॉन जीरो आऊगी। जिवें आ देखिए ये आम अलजैबरे विच पढ़िया है आपने, पर रिंग दे विच 2 नॉन जीरो की प्रोडक्ट जो है वो 0 आ सकती है। रिंग दे विच 2 नॉन जीरो की प्रोडक्ट जो है वो 0 आ सकती है। इस करके ये आम पहला वांग गल्लां नहीं है कि ये किवें पॉसीबल है। बस वो डेफिनेशन ला के देखनी है आपां। जे लग गया फिर आप कहांगे ठीक है जी, नहीं लग्या फिर आप कहांगे नहीं ठीक है। अगे इदा भी कह सकते हैं आप जो 2 है वो फैक्टर ऑफ 3 है, 4 भी जो है वो फैक्टर ऑफ 3, दोनों फैक्टर कह सकते हैं आप। जे ए ते सी चो कोई यूनिट ना हो, हुण देखना कि प्रॉपर फैक्टर की होंदा। यूनिट की होंदा जिहदा इनवर्स निकले। हुण ये गल ध्यान रखनी है, 1 का इनवर्स निकलदा जी, अंडर मल्टीप्लीकेशन लेना आप इनवर्स जिहड़ा कह रहे हैं आप। ये लग गया होगा कि यूनिट की गल हो रही है। यूनिट की गल तां होगी अगर रिंग दे विच यूनिट ही आऊगा, 1 आऊगा। इनवर्स की गल तां हुंदी है जे आइडेंटिटी एलीमेंट एग्जिस्ट करेगा। ये पहला पढ़िया है। हुण इहदे विच देखो कि प्रॉपर फैक्टर की गल करनी है अपने कि प्रॉपर फैक्टर है कोई कि नहीं है। जिवें आप कह सकते हैं 2 हैगा, ये प्रॉपर फैक्टर ऑफ 1 फैक्टर तो हैगा या डिवाइड तो कर रहे अपने को। ये 2 नूं आपां 1 का प्रॉपर फैक्टर कहांगे कि नहीं कहांगे। प्रॉपर फैक्टर आपां तां कहांगे जे इन्हां दोनां विचों ना ए यूनिट होवे ना ए यूनिट होवे। ये यूनिट ही नहीं गया, यूनिट की हुंदा हैगा अपने कोल। यूनिट बारे किता सी अपने कि जिहदा इनवर्स निकले, ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲਦਾ 2 ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੀ। 2 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਟਿਵ ਇਨਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ 1 ਹੋਏਗੀ ਜੀ। 2 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਨਸਰ 1 ਬਣੇ, 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 यूनिट आ 3 भी यूनिट आ, दोनों इनवर्स आ रहा। 2 का इनवर्स भी आऊगा 3 का इनवर्स भी आऊगा। इस करके आप कहांगे कि 2 ये जो 2 हैगा ये 1 का प्रॉपर डिवाइजर नहीं हैगा, बिकॉज 2 जो है ये यूनिट है। एक होर गल देख लें जिवें इत्थे कह रहे हाँ कि 2 डिवाइड 4 करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज 2 नूं अगर 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 4 आ जाएगा। हुण की ए फैक्टर प्रॉपर है?
जे ना ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਕਟਰ। ਹੁਣ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟੀ 1 ਹੈ, ਇਸ ਕੇਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਯੂਨਿਟੀ 1 ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਸੇਮ ਆਊਗਾ ਆਂਸਰ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 0 ਹੈਗੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ 1। ਹੁਣ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ 1 ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵੋ, ਇਹ ਕਦੇ 1 ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੇ 1 ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 2 ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, 2 ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 2 ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈक्टर ऑफ 4। इस केस कहांगे 2 इज प्रॉपर फैक्टर ऑफ 4। जो 2 है ये 4 का प्रॉपर फैक्टर होगा। चलो आ डेफिनेशन है, बस इस टॉपिक के डेफिनेशन काफ़ी आनी है, डेफिनेशन है सारियां सिंपल ने। अगे नैक्सट आप डेफिनेशन करनी हैगी एसोसीएट। ये डेफिनेशन जो हैगी ये पेपर च आ सकती ने 2 नंबर दे विच। एसोसीएट किहनूं कहने आपां, लैट कर ले, लैट आर बी आ रिंग विद यूनिटी, लैट आर बी आ रिंग विद यूनिटी। लैट कर लिया अगे अपने ए ते बी कोई 2 एलीमेंट आर च ने, देन ए इज सेड टू बी एसोसीएट ऑफ बी। इन्हूं पावांगे ए इज एसोसीएट ऑफ बी। A is associate of B if and only if A is equals to BU, where U is unit in R. U is unit in R. Associate की हुंदा जे किसी एलीमेंट नूं यूनिट नाल मल्टीप्लाई कर दिए, ਜਿਹੜਾ आंसर आऊगा वो आंसर ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ कि A इज एसोसीएट ऑफ B। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ एग्जांपल्स ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ यूनिट बारे देखना है, यूनिट ਕੱਢਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, कुछ सैट ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस तो बाद फिर आप थोड़ा एसोसीएट समझांगे एग्जांपल देख के एसोसीएट का मतलब की होगा। ये न्यूमेरिकल है, तुसी स्टेटमेंट चेक कर लो। फाइंड द यूनिट्स ऑफ इन द फॉलोइंग रिंग्स। ये यूनिट फाइंड करने आप सारे। एक Z है फर्स्ट पार्ट, Z8 है सेकंड पार्ट, ZI ये नवी चीज़ है, फोर्थ पार्ट Z√-5। तो देखो किवें इन्हां सारे च पहला आप यूनिट फाइंड करना कि यूनिट किहड़े-किहड़े होणगे। उस तो बाद फिर चलो एसोसीएट की गल तो बाद चो करांगे आपां। तो पहला पार्ट कर रहे हैं आप रिंग इन Z हैगा सैट ऑफ इंटीजर्स, तो ये जिहड़ा एडिशन है यूजुअल हैगी है, तो मल्टीप्लिकेशन भी की है यूजुअल हैगी है। तो यूनिट की हुंदा हैगा, लैट कर लिया आप A बिलोंग्स टू Z। जे ए दा इनवर्स निकलेगा तो आप कहांगे ए यूनिट होगा। इनवर्स की प्रॉपर्टी होंदी है ए इज सेड टू बी यूनिट। यूनिट आप कहांगे इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू Z सच दैट ए बी इक्वल टू 1 इक्वल्स टू बी।
ਇਨਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਏ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਆਂਸਰ ਯੂਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਸਕੇ ਯੂਨਿਟੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 1 ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਬੀ 1 ਬਰਾਬਰ ਆਵੇ ਤੇ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੋਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੇ। ਬੀ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਆਪਾਂ, ਏ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰਸ ਮੰਨੇ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੱਭਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਏ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਏ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋਵੇ, ਬੀ ਏ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਏ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਏ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ, ਇਨਵਰਟੀਬਲ, ਤਾਂ ਏ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਯੂਨਿਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਇੰਟੀਜਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 1 ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਬਾਈ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟੀਜਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਨ ਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਦਾਂ ਨੰਬਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 1 ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟੀਜਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 1 ਆਊਗੀ, ਇਹ ਬਾਈ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋਨੇ 1 ਹੋਣ ਤਾਂ 1 ਆਊਗੀ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋਨੇ -1 ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ -1 -1 ਬਣ ਜਾਏ। ਤਾਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ, a ਜੋ ਹੈ ਉਹ +-1 ਆ ਗਿਆ, 1 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ -1 ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, 1 ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਸ ਇਕੱਲਾ -1 ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। 2 ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 2 ਜੋ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ 1/2 ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਵਰਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਫ ਆ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹਾਫ ਇੰਟੀਜਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 2 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਯੂਨਿਟਸ। ਤਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, +-1 ਇਸ ਕੇਸ, ਇੰਟੀਜਰ ਦੇ ਕੇਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ, ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਲੱਭਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਾਈਂਡ all associates of 2 in Z। ਇਹ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ Z ਇੰਟੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਿਓ, ਜੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ B ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਲੱਭਣਾ, A ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਫ B, ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆਫ B। B ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣੇ ਆ ਕਿ B ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ। ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਯੂਨਿਟ ਤਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ 2 ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ, ਇੱਕ 1, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈਗਾ -1। therefore associates of 2 are 2 into 1 ਤੇ 2 into -1। ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੱਕ 2 ਐਸੋਸੀਏਟ ਆ, ਇੱਕ -2 ਐਸੋਸੀਏਟ ਆ। ਤਾਂ 2 ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ 2 ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ 2 ਇੱਕ -2। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ 3 ਦੇ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, 3 ਨੂੰ ਵੀ 1 ਤੇ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜੋ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਟ। ਇਹਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ Z8 ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 0 1 2 3 4 5 6 7 ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਇਨਵਰਸ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੀ। 0 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੋਡਲ 8 ਲਈਏ ਕਿ ਆਂਸਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਟਰਾਇਲ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਵੀ
किसी माजरा मल्टीप्लाई कर लो, 1 नहीं कदे बनना, 0 होगा हमेशा, तो 0 का इनवर्स नहीं निकलता। 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ किधर मल्टीप्लाई करिए कि 1 बन जाए 1 आ जाए, तो ਇਹਦਾ इनवर्स निकल गया, तो 1 ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, यूनिट। 2 ਨੂੰ जिस माजरा मल्टीप्लाई कर लो जी, ये कदे 1 नहीं बनना, ये कदे नहीं बनना 1। ਇਹਦੀ 3 ਨੂੰ मल्टीप्लाई करांगे ਆਪਾਂ, 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई होगा जी, 9 बन जाएगा। 9 ਨੂੰ 8 ਤੇ डिवाइड किया 1, तो 3 का इनवर्स आ गया। 4 का नहीं आना। 5 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ मल्टीप्लाई करिए, 5 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ कर लो, 25, 8 ਤੇ डिवाइड किया 24, एक रिमाइंडर आ गया, 1 बन गया। 7 ਨੂੰ 7 ਤੇ करता 49, 68। तो सिर्फ 1, 3, 5, 7 इन्हां दे इनवर्स निकलने ने। तो इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, देयरफॉर 1, 3, 5, 7 आर यूनिट्स इन Z8। यूनिट का मतलब की है किन्ना किन्ना का इनवर्स निकलता है। हुण थर्ड क्वेश्चन उन्होंने कहा है जी, वो है Z आयोटा। ਇਹਦਾ मीनिंग की होंदा, ਇਹਦਾ मीनिंग होंदा हैगा जिद्दां ब्रैकेट च पाया होवे, ਤਾਂ ਇਹ एलीमेंट ਨੂੰ ध्यान रखना जी, ਇਹ वाले एलीमेंट ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ है, 2 इंटीजर लैके जोड़ लेना। ਜਿਹੜਾ एलीमेंट दिता है अपन आयोटा, ये A प्लस आयोटा B पा लेना सच दैट A B इंटीजर होवे। इदां दे नंबर होणगे इहदे विच, जिवें आ देखो इंटीजर है। नैक्सट चौथा पार्ट आ कितना, रूट -5। ये अगे भी आउणगियां एग्जाम्पल। यह नंबर नूं 2 इंटीजर, एक सिंगल पा लेना इंटीजर पहला, दूजा ਇਹਦੇ ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके फिर इंटीजर लै लेना, मल्टीप्लाई करके इंटीजर पाना। इस नंबर के फॉर्म जोड़े है ए बी इंटीजर ने, ये सारे ये आउणगे। पहला इंटीजर इदां ही पाना हैगा, दूसरा इंटीजर इस नंबर नाल मल्टीप्लाई करके ऐड करना। इस टाइप के सारे नंबर ये सैट विच आउणगे, जिवें Z√2 आ गया। पहला इदां ही पाना इंटीजर, दूजा इंटीजर जो है वो मल्टीप्लाई करके पाना। ये दोने इंटीजर ने, इस प्रकार के नंबर जो है सारे ये आउणगे। ये इदां सैट का मीनिंग होगा जी। जो देखो इस तो बाद जो पहला आ क्वेश्चन करते हैं, यूनिट फाइंड करने। इतों लग रहा ये सौखा ही है कि A प्लस आयोटा B दी फॉर्म के नंबर होणगे, ए ते भी दोने की लेने आपां इंटीजर। तो देखो हुण यूनिट सपोज कर लवांगे, जो नहीं पता अपने सपोज कर लेने आपां कि लैट कर लिया C प्लस आयोटा D, यह ZI च मान लिया, C ते D की ने इंटीजर्स। ਇਹਦਾ इनवर्स आह मन्निया। देयरफॉर जे आपां इन्हां दोनों नंबरां नूं मल्टीप्लाई करांगे तो आंसर की आऊगा, आइडेंटिटी। ये आपां आंसर जो है आइडेंटिटी मान लें। हुण देखो इहनूं सॉल्व किवें करना आपने। ये थोड़ा जिहा +1 का कॉम्पलैक्स नंबर यूज़ करांगे सॉल्व करने वास्ते। ए प्लस आयोटा B तो ये ही है, तो मतलब ए बी जो है ने ये इंटीजर्स ने। कॉम्पलैक्स नंबर किवें करांगे, ये नंबरिंग 1 पा लो, दोने पासे कॉन्जुगेट ले लो, टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। ये आ गया A माइनस आयोटा B। कॉन्जुगेट की होंदा, आयोटा साइन चेंज करना होंदा। ये A माइनस आयोटा B बन गया। ए C माइनस आयोटा D, 1 का कंजुगेट ये आयोटा है नहीं, आयोटा साइन चेंज करना होता है। ये +1 का काम यूज कर रहे हैं, फिर दोनों मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 1 मिनट।
ਹੁਣ ਇਹ ਲੈਫਟ हैंड साइड अलग मल्टीप्लाई होगी, राइट हैंड साइड अलग मल्टीप्लाई होगी। ਹੁਣ a प्लस आयोटा b ਅਤੇ a माइनस आयोटा b मल्टीप्लाई करांगे a स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर b स्क्वेयर, ये होगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। तो ये मल्टीप्लाई करता पहला आ गया a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, दूजा की आ गया ये भी मल्टीप्लाई हो गया c स्क्वेयर प्लस d स्क्वेयर इक्वल टू 1। हुण ध्यान रखना हैगा आपां ने कि ये दोने की ने, ये भी इंटीजर ने दोने, ये भी दोने इंटीजर ने। किसी इंटीजर का आपां स्क्वेयर करांगे वो आंसर पक्का इंटीजर आऊगा। किसी भी इंटीजर का तुसीं स्क्वेयर कर लो आंसर पक्का इंटीजर आऊगा। ये पक्का इंटीजर है, ये पक्का इंटीजर है, तो दोनों की एडिशन पक्का की आऊगी इंटीजर आऊगी। जे ये एडिशन इंटीजर आ रही है ये भी इंटीजर होगी। पहला वांगू नहीं, पहला पिछले फर्स्ट क्वेश्चन किया सीगा कि दो नंबर दो इंटीजर की प्रोडक्ट 1 आ रही है, जो पिछले फर्स्ट पार्ट च किया सी। ये तां ही पॉसीबल है अगर दोने 1 होणगे जां दोने -1 होणगे। हुण ये भी इंटीजर ने दोने, ये भी दोनों इंटीजर ने, देयरफॉर ये तां ही पॉसीबल है अगर दोने 1 होणगे और ये दोने -1। बाकी सिंपल जी कैलकुलेशन है, उदा सॉल्व करना अपन। फिर इहदे विच कि स्केयर दा सम, जे ए भी इंटीजर आ ए भी इंटीजर आ, स्केयर करके सम कर रहे, नैगेटिव तो कदे आ नहीं सकता, ये तो पॉसीबल नहीं है। कटना की आपां ने वो नंबर लभने ने जिन्हां दा इनवर्स आ रहा, मतलब आपां ए ते बी फाइंड करना, सी डी लोड नहीं हैगी। तो ये इक्वेशन बच गई कल्ली, ये हुण आपां ए ते बी फाइंड करांगे। तो ये आ गया अपने कोल देयरफॉर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। हुण आप देखो दो नंबरां दा दो इंटीजर स्केयर करके आप ऐड कर रहे हैं 1 आ रहा, ये कदों पॉसीबल आ जदों ए 0 होवे बी 1 होवे। एक तो केस बन गया 0 प्लस 1 करांगे 1 आ जाएगा। इदा केस बनाना किन्ने आंसर अपने पॉसीबल ने। चलो ए 0 बी 1 आ सकता, और की हो सकता ए 0 बी -1, 0 पर आगे -1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा। होर पॉसीबल है ए 1 बी 0 जां ए -1 बी 0। ये ओवरऑल 4 केस पॉसीबल ने। देयरफॉर एलीमेंट कितना मन्निया सी आपां ए प्लस आयोटा बी, ये एलीमेंट सीगा। ये की बन जाएगा पहला ए 0 भरता बी 1 भरता, कितना आ गया आयोटा। ए 0 भरता बी -1 भरता माइनस आयोटा। ए 1 भरता बी 0 भरता, ए 1 आ गया, ए -1। ये 4 ही एलीमेंट ने जिन्हां दा इनवर्स निकलिया। ये चारों नूं कहांगे आपां यूनिट्स इन Z I आयोटा, ये यूनिट्स कहांगे। हुण ये नाल ही क्वेश्चन पुट किया होवे उन्होंने, मान लो ये नाल ही उन्होंने क्वेश्चन पुट किया होवे कि फाइंड ऑल एसोसिएट्स ऑफ 2 + 3 आयोटा इन Z आयोटा। ये सारे एसोसीएट करने अपने। जे क्वेश्चन इदा आ जाए फाइंड ऑल एसोसीएट ऑफ दिस, तो सब तो पहला आपां नूं इहदे यूनिट्स फाइंड करने पैणगे। इदा सारे पहला यूनिट्स फाइंड कर ले। यूनिट्स किन्ने आए ने 1 2 3 4। हुण एसोसीएट करने सौखे ही ने, वो किवें इहदे एसोसीएट करने आ, इहनूं यूनिट नाल मल्टीप्लाई कर लो, जिन्ने आउणगे वो सारे एसोसीएट होणगे। देयरफॉर एसोसीएट्स ऑफ 2 + 3 आयोटा आर, ये एसोसीएट होणगे अपने को 2 + 3 आयोटा, 1 1 आयोटा नाल मल्टीप्लाई कर लो जी,
2 + 3 आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करता, 2 + 3 आयोटा 1 मल्टीप्लाई करता, 2 + 3 आयोटा माइनस ये मल्टीप्लाई करना, तो ये आ गया अपने को एसोसीएट बन गए। ये आ गया जी -3 + 2 आयोटा, ये आ गया जी 3 - 2 आयोटा, 2 + 3 आयोटा -3 आयोटा, ये 4 ये एसोसीएट होंगे। जिन्ने यूनिट आएंगे उन्नी एसोसीएट बन गए। एक पार्ट रह गया जी, उसी आप ट्राई कर लियो जी। तो ठीक है, यही काम करना सी, बाकी नैक्सट काम आप नैक्सट लेक्चर में करांगे। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लियो जी। थैंक यू।